This video is the sixth part of our discussion interpolation, in which we discuss numerical integration. Here we shall learn how to find the values of definite integrals using interpolation. The process is called numerical integration. So let's start and see how to find the values of the integrals using interpolation. Here we have to find the value of this integral a to b fx dx, and this process is called quadrature. We divide this interval a to b in n equal parts, x0 to xn, where this xn is b. So x0 is a starting point and xn equal to this b. This b is xn. Then this integral will become x0 is a and b is x0 plus nh fx dx. So इस फॉर्म में इंटीग्रल हो जाएगा, ए बी की प्लेस पर आ जाएंगे x0 एंड x0 प्लस nh. नाउ वी हैव टू यूज़ इंटरपोलेशन फार्मूला. सो इंटरपोलेशन फार्मूले के लिए इस fx को हमको इंटरपोलेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स x0 प्लस पी एच, इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे देन यू कैन यूज़ इंटरपोलेशन फार्मूला. हियर वी पुट x इक्वल टू x0 प्लस पी एच. So if we put this x equal to x0 plus ph, then dx will be h into dp. Here p is variable. इस पूरे एक्सप्रेशन में x equal to x0 plus ph में x0 fixed है, h भी fixed है, p is variable. So dx equal to h into dp. The lower limits and upper limits, x equal to x0 पर p क्या होगा? 0. So when you put x equal to x0, then this will imply p equal to 0. And when you put x0 plus nh, x equal to x0 plus nh, then p will be n. So upper and lower limits हो जाएंगी 0 to n, and this x will become x0 plus ph, and this dx will be h into dp. So this integration now becomes integration in terms of p. So using Newton's forward difference interpolation formula, you can write f x0 plus ph in this form. Here we have dp also. So y0 plus p into y del y0 p into p minus 1 by 2 factorial del 2 y0 and so on. This is by Newton's forward difference interpolation formula. So ये f of x0 plus ph की वैल्यू है. Okay, now integrate with respect to p. So यहाँ पर del y0 del 2 y0, these are constants जो कि टेबल से आएंगे, and this p is variable. So differentiate, integrate with respect to p and simplify. So if you integrate, then few terms, I have written few terms. So here you will have y0 into p after integration. So at lower limit and upper limits, this is n y0. Here you will have p square by 2, that means n square by 2. Lower limit पर तो 0 ही होगा सभी जगह. So n square by 2 and so on. Then we have taken n common from this expression. Entire expression में से हमने n common लिया है. So after simplification, this is the expression. This expression is called Newton Cotes general quadrature formula. Quadrature का मीनिंग होता है process of finding definite integral. The first formula is called trapezoidal rule, and this formula is obtained by taking n equal to 1. So when we take n equal to 1, we have x0 to x1 integration, which is h into y0 plus del y0. So after you simplify this, you get h by 2 y0 plus y1. Put del y0, इसको हम simplify करते हैं. Del y0 is y1 minus y0 and by 2. If you simplify this expression, you get y1 plus y0 by 2. So n equal to 1 के लिए जो expression आया है वो है h by 2 y0 y1. And what is this? ये अगर आप देखोगे तो क्या है ये? अगर मैं इस इंटीग्रेशन को इस तरह से प्लॉट करूं, ये रहा आपका x0 पॉइंट और ये रहा आपका x1. तो ये क्या है? LHS में x0 टू x1 क्या है? दिस इज एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x0 टू x1. दैट मीन्स ये वाला एरिया है. सो LHS में जो इंटीग्रेशन है दैट इज एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x0 टू x1. वाइल ऑन RHS क्या निकला ये एरिया? h by 2 y0 प्लस y1. सो ये y0 है लाइन और ये y1 है, और h क्या है? इनके बीच का डिफरेंस. दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल. सो ये जो एरिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या लिया है? एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइडल
with parallel sides y0, y1 and distance h between them. So this area is approximately equal to area of this trapezoidal with parallel sides y0, y1 and distance between them h. Now same formula if we apply for the next interval, अगर हम x0 x1 की प्लेस पर x1 x2 ले लें, अब ये एरिया फाइंड किया हमने, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके. So instead of taking x0 x1 we have taken x1 x2. So अगर x1 x2 पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h/2 y1 प्लस y2. सो नेक्स्ट वाला जो ट्रेपेजॉइडल है उसका एरिया हो जाएगा h/2 y1 प्लस y2. तो हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए एरिया, x0 से लेकर तो लास्ट जो पॉइंट है xn इक्वल टू b. सिमिलरली हमने सेकंड वाली जो स्ट्रिप है x1 x2 से बाउंडेड उसके लिए लगाया, तो ये एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइडल विद पैरेलल साइड्स y1 y2 एंड डिस्टेंस h. सो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते जाएं और लास्ट में xn-1 टू n अगर हम xn स्ट्रिप का एरिया फाइंड करें तो वो भी आएगा एरिया बाउंडेड बाय दिस ट्रेपेजॉइडल विथ पैरेलल साइड्स yn-1 एंड yn. सो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, नाउ द सम ऑफ ऑल दीज इंटीग्रल्स. सो इसका जो वैल्यू है वो क्या आई थी, h/2 y0 y1 y0 प्लस y1, इसकी वैल्यू आई थी h/2 y1 प्लस y2 एंड सो ऑन. सो h/2 कॉमन एवरीवेयर एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस you see that this y0 and yn ये सिंगल टर्म्स हैं, सो इनका हमने सम ले लिया यहाँ पर. एंड एवरी अदर टर्म इज ट्वाइस, 2y1 2y2 अप टू 2yn-1. सो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल इज दिस. नाउ ये दिया चीज़ आपको याद रखना है, एनी यू कैन टेक एनी n. सो व्हाट वी डू इन दिस रूल, वी फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ए सिंगल स्ट्रिप अंडर द कर्व with sides yk-1 and yk and then we add all these area to get the total area under the curve. So ये इसकी important जो है interpretation है. Now second वाला जो formula है where we take n equal to 2, इसको हम बोलते हैं Simpson's 1/3 rule. So Simpson 1/3 rule में हम देंगे n equal to 2. So अब n equal to अगर आपने 2 ले लिया then what points you have, x0 x1 एंड x2, इसके करस्पॉन्डिंग है y0 y1 y2. सो यहाँ से आपको मिलेगा डेल y0 डेल y1 और इससे आपको मिलेगा डेल 2 y0. सो यहाँ तक का आपको डिफरेंसेस अवेलेबल रहेंगे इस n इक्वल टू 2 के लिए. सो न्यूटन्स कोर्स जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले से हमने ये टर्म्स लिखी है y0 डेल y0 डेल 2 y0 बाय टेकिंग n इक्वल टू 2. ठीक है, इतनी टर्म्स आएंगी इंटीग्रेशन में. सो ये दो स्ट्रिप एक साथ ले ली और हमने इसका एरिया फाइंड कर दिया है. ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अगेन वी टेक 2 स्ट्रिप्स x2 से लेकर x4 तक. सो x0 टू x2 तो हो गया आपके पास में. ये नेक्स्ट जो 2 सेट है स्ट्रिप्स का वो है x2 टू x4. देन नेक्स्ट 2 स्ट्रिप्स क्या है, x4 टू x6 एंड सो ऑन. सो हियर वी टेक 2 स्ट्रिप्स एट ए टाइम. सो x0 टू x2 आपके पास में ये आ गया, इसको हमने लिखा है y0 से स्टार्ट हुआ है y0 प्लस 4y1 प्लस y2. सो x0 टू x2 एक पॉइंट और है x1. सो इसके करस्पॉन्डिंग है 4y1, x0 के करस्पॉन्डिंग है y0 एंड x2 के करस्पॉन्डिंग है y2. सो सेम फार्मूला इफ़ यू अप्लाई फॉर नेक्स्ट 2 स्ट्रिप्स x2 टू x4, एंड पॉइंट चेंज करके हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y2 प्लस 4y3 प्लस y4. एंड सिमिलरली लास्ट 2 स्ट्रिप्स जो है वो ले ली हमने xn-2 टू xn, बीच में xn-1 है. सो यू विल गेट दिस yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn. देन दिस इंटीग्रल विल बिकम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स x0 टू x2, देन x2 टू x4, देन x4 टू x6, देन xn-2 टू xn. सो यू विल गेट दिस फार्मूला. इसकी वैल्यू आपने रखी है y0 प्लस 4y1 प्लस y2, इसकी वैल्यू है y2 प्लस 4y3 प्लस y4, इसकी वैल्यू है एंड सो ऑन. लास्ट वाला जो वैल्यू है yn-2 प्लस 4yn-1 प्लस yn. सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस h/3 आउटसाइड, y0 एंड yn आर सिंगल, y0 एंड yn सिंगल. देन 4y1 4y3 4yn-1. सो ऑड टर्म सारी यहाँ पर है, 4 into odd terms, and 2 times y2 2 times है
y4 भी 2 टाइम्स आएगा, yn माइनस 2 भी 2 टाइम्स आएगा, n शुड बी इवन। सो 1/3 रूल में हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रिप एक साथ लेते हैं, इसलिए 2 का सेट बनाना है आपको, इसलिए आपको n इवन रखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट रूल है सिम्पसन 3/8 रूल, हियर वी टेक 3 स्ट्रिप्स एट ए टाइम, n इक्वल टू 3 लेते हैं हम। सो n इक्वल टू 3 लेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, इससे मिलेगा आपको डेल y0, फिर आगे जाओगे आप डेल 2 y0, एंड इससे आगे जाओगे डेल क्यू y0, बस डेल क्यू y0 तक की टर्म्स इसमें आएंगी। सो न्यूटन कोट्स फार्मूले में से आपने डेल क्यू y0 तक की टर्म्स लिखी और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सो सिंप्लीफिकेशन में नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, आप डायरेक्ट याद रखो, y0, डेल y0, डेल 2 y0, ये सब आपको मालूम है इनकी एक्सप्रेशंस। सो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x0 टू x3, अब आपने क्या किया, इसको 3 स्टेप्स एट ए टाइम लिए। ये x0 हो गया, ये x1 है, ये x2 है, एंड दिस इज x3। अब आपने पूरा एरिया एक साथ ले लिया। सो x0 टू x3 जो एरिया है दैट इज नाउ इक्वल टू 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। सो x0 के करस्पॉन्डिंग y0 है, इसके भी बाद x1 है तो उसके लिए 3y1, फिर x2 है तो उसके लिए 3y2, और लास्ट वाला पॉइंट x3 है उसके लिए y3। सो x0 टू x3 जो एरिया है वो एरिया हो गया एरिया ऑफ दीज 3 स्ट्रिप्स, दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो एक बार ये 3 का सेट बना लिया, नेक्स्ट 3 का सेट कैसे बनेगा, 1, 2 एंड 3। सो x3, x4, x5, x6। तो नेक्स्ट जो सेट है वो 3 का x3 से लेकर x6 तक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है x6 से लेकर x9 तक। सो यहाँ पर आपको 3 का सेट बनाना है एट ए टाइम, देन यू हैव टू डिवाइड द सब इंटरवल इनटू मल्टीपल ऑफ 3, 6 लेना है या 9 लेना है या 12 लेना है या 15। सो एक आपका x0 टू x3 ये आ गया, देन x3 टू x6 वो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन xn माइनस 3 टू xn, यू विल गेट दिस। सो एडिंग ऑल दीज LHS एंड RHS, सो LHS को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया फ्रॉम A टू B आ जाएगा, और RHS को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यूज आ जाएगी। सो x0 टू x3, x3 टू x6, x6 टू x9, xn माइनस 3 टू xn, and if you simplify this you get this area of 3 strips under the curve at a time. So we have to divide the interval into a multiple of 3. Look at this example. Evaluate 1 to 5 this integral using taking 13 ordinates. So y is this, then take h equal to 5 minus 1/12 which is 1/3. So starting point है 1, so 1 plus h क्या होगा, 1 plus 1/3 which is 4/3. सो स्टार्टिंग पॉइंट है 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने। सो 1 पर वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस साइन 2 इंटू 1 साइन 2, 1 प्लस 3 प्लस साइन 2 विच इज 3.9093। दिस इज नाउ y0। नेक्स्ट पॉइंट है 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 मीन्स 4/3, उस पर वैल्यू फाइंड की है y की विच इज 3.7394 विच इज y1। देन 4/3 प्लस h, 4/3 प्लस 1/3 5/3 एंड सो ऑन। सो ये ऑटोमेटिकली आप इस तरह से 1/3 ऐड करते जाओगे। 1 में 1/3 की ऐड किया तो 4/3 आया था, 4/3 में 1/3 ऐड किया तो 5/3, 5/3 में फिर से 1/3 ऐड करेंगे तो 2 एंड सो ऑन। सो ऑटोमेटिकली यू विल रीच एट 5। 14/3 में ऐड कर दो 1/3, सो यू विल गेट 5। सो इन सारे पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, इस y की वैल्यू। सो दिस विल बी y0, y1, y2, y3, y4 अप टू y12 एंड यू कैन सी 13 ऑर्डिनेट्स हैं y0 से स्टार्ट करके y12 तक 13। नाउ यू हैव y0, y1, y2 अप टू y12, देन अप्लाई एनी फार्मूला। ट्रेपेजॉइडल लगा सकते हो आप, ट्रेपेजॉइडल लगाया हमने सबसे पहले। सो ट्रेपेजॉइडल में सिंपल से है फार्मूला h/2 y0 प्लस y12, यहाँ होता है y0 प्लस yn, ठीक है, उसके में y0 प्लस y12 2 टाइम्स ऑल अदर ऑर्डिनेट्स y1 टू y11। ये y0 ये वाली वैल्यू है 3.9093 प्लस ये लास्ट वाली जो वैल्यू है 2.0287,
तो ये तो हो गया आपका y0 प्लस y12 जो भी आएगा ये, एंड 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल द ऑर्डिनेट्स, 2 टाइम्स सम ऑफ y1 प्लस y2 y3 y4 अप टू y11। तो यहाँ तक का जो भी है वो आपको सम लेना है, उसको 2 टाइम्स कर देना है, एंड y0 एंड y12 को आपको सम यहाँ पर ऐड करना है। सो यूजिंग सिम्पसन्स यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल व्हाट यू गेट, ये y0 प्लस y12 है, ये वाली वैल्यू इसका सम है, 2 टाइम्स ये y1 से लेकर y11 तक का सम ये है, h आपके पास में है 1/3 तो ये 1/6 हो गया, एंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 11.1785। So using trapezoidal rule, value of this integral is 11.1785। सेम चीज़ आपको सिम्पसन 1/3 में करना है। सिम्पसन 1/3 का फार्मूला लिख दो सबसे पहले, y0 y12 तो सभी में आ रहा है, ठीक है, बाहर h/3 है, 4 टाइम्स y1 y3 देन y5 y7 देन y9 y11, प्रॉपरली लिखना है फार्मूला है ना, y1 y3 y5 y7 y9 y11 एंड 2 टाइम्स जो भी e1 है y2 y4 y6 y8 एंड y10। सो दिस इज सिम्पसन्स 1/3 रूल फार्मूला, एंड इफ यू पुट ऑल दीज वैल्यूज y0 प्लस y12 ये वाली वैल्यू है, 4 टाइम्स y1 y3 देन y5 y7 देन y9 y11, टेबल के अंदर y1 और y3 का सम है, y5 y7 का सम है, y9 y10 का सम, y11 का सम है, देन 2 टाइम्स y2 y4 y6 y8 y10, तो टेबल के अंदर जो भी है उस सम हमने फाइंड कर लिया, एंड दिस वैल्यू इज नाउ 11.1755। देन सिम्पसन्स 3/8 रूल अगर अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। सिम्पसन्स 3/8 रूल का फार्मूला भी आप लिख सकते हो, 3h/8, दिस टर्म इज कॉमन टू ऑल y0 प्लस y12, 3 टाइम्स y1 y2 y3 यहाँ पर आ जाएगा 2y3, y4 y5 6 यहाँ पर आ जाएगा y6, y7 y8 y9 यहाँ आ जाएगा, and y10 y11। So here also you can see all the ordinates are present only once, सारे प्रेजेंट है और एक ही बार है। सो टेबल से सारी सम फाइंड करना है आपको, सारे सम फाइंड करके यहाँ रख दिया आपने वैल्यूज, देन यू विल गेट 11.175। सो सिम्पसन्स 3/8 रूल से ये वैल्यू आ रही है 11.175। ना एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, अभी एग्जैक्ट वैल्यू ये है, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज दिस आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल से 1785 आ रहा है, 11.1785, 1/3 से 1755 आ रहा है, और सिम्पसन्स 3/8 से 11.175। सिम्पसन्स 1/3 इज बेटर, आप देखोगे ये वैल्यू हमेशा सिम्पसन 1/3 इज बेटर। अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला है कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है तो सिम्पसन्स 1/3 अप्लाई करना है, ऑलवेज अप्लाई सिम्पसन 1/3, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x² प्लस साइन एक्स, द एंड ऑर्डिनेट्स एंड द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला ax बार इक्वल टू 0 to 6 xy dx। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, where A is the area under the curve from 0 to 6. Find x bar using Simpson's 3/8 rule taking 13 ordinates. So ये जो आपको दिया है इंटीग्रेशन, इसमें 0 to 6 को आपको 13 ऑर्डिनेट्स लेना है इसके बीच में। सो अगेन यू हैव टू डिवाइड बाय 12, ओके, और ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो इसको फिर से आपने 6 - 0/12 ले लिया, 0.5 आ गया h, ठीक है, 1/2 आ रहा है, उसको हमने 0.5 लिख दिया है। y इज x² प्लस साइन एक्स, टेबल प्रिपेयर किया आपने, तो यहाँ पर जगह कम इसलिए टेबल छोटी है, ठीक है। x हो गया 0 से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, फिर 0.5 ऐड करेंगे, फिर 0.5, फिर 0.5 ऐड करते जाएंगे, ऐसे 6 तक पहुँचेंगे। y करस्पॉन्डिंग जो y है वो क्या है, x² प्लस साइन एक्स, ये है आपका y, और xy जो वैल्यू आ रही दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई। सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 6 y dx, यूजिंग 3/8 रूल हमने y dx फाइंड कर लिया एरिया। सो y ये वाला y है, ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, बीच वाली जो रो है उसमें उसकी वैल्यूज। एरिया इज 72.04। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
एक्स बार ए एक्स बार इक्वल टू 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स, ये आपको दिया है फार्मूला. सो फाइंड दिस. एक्स वाई मीन्स x0 y0 देन x12 y12, जो हमने टेबल फाइंड की x इंटू वाई, वो वाली वैल्यूज. देन दिस इज इक्वल टू 317.96. So ax bar is 317.96 using Simpson's 3/8 rule. Therefore, what is x bar? So ax bar is this 317.96. So x bar means x coordinate of the center of gravity is 4.4137. So यहाँ पर center of gravity without integration आपको डायरेक्ट मिल गया है. So जहाँ जहाँ भी इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस हैं सिंगल इंटीग्रल के, वो आप इन तीनों रूल से फाइंड कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू. थैंक यू वेरी मच.